Yesterday we saw that GDP is not a very good measure of human well-being or economic well-being. It is an indicator of economic development and it is also used as an indicator of social and economic well-being. But there are some limitations of GDP as measure of economic well-being, and we use some other measures. Yesterday we saw the core values of development which should be included in economic growth or as the purpose or objective of the economic growth. Today we will study another index which is called Human Development Index. It is a statistical measure used to assess the social and economic development of country. जीडीपी में बड़ा जीडीपी की डेफिनेशन हमने देखी उसमें क्या आता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड ओवरऑल प्रोडक्शन में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसमें ये कि देर आर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस और इट्स production capacity and then the availability of goods and services. But there are the many dimensions of human development which are not considered in the GDP. So Human Development Index is developed to take into account those directions, those dimensions of the human development. It was developed by United Nations to assess the social and the economic development of countries. It considers the three indicators of human development, जिसमें जो mainly ये consider किए जाते हैं data के साथ life expectancy, education and per capita income. Per capita income means GDP divided by population. Pakistani economist Mehboob Haq developed the Human Development Index in 1990. The measure is an alternative to the standard metrics of development of countries which consider only the economic part of country development. The Human Development Index provides a picture of the nation development because it incorporates primary social and economic factors. Human Development Index में आप डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है और उसका जो स्केल होता है वो 0 से 1 तक होता है. 1 मीन हाईएस्ट मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन most developed country and 0 mean lowest human development. इसमें जो basic three goals are end products of the development consider की जाती है. Longevity as measured by life expectancy at birth and gross school enrollment ratio इसको 1/3 लिया जाता है. इट इज द मतलब कि आपके एजुकेशन को कंसिडर करने के लिए एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर बाय रियल पर कैपिटा जीडीपी. Using these three measures of the development and applying a formula to data 177 कंट्रीज जो से उनको ये फार्मूला अप्लाई किया गया है तो 0 से 1 के स्केल में आगे उन कंट्रीज की जो रैंकिंग है देर आर द 4 कैटेगरीज. लो ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू जो सी है 0 to 0.4 नियर 5 बनती है तो इसको कहेंगे लो ह्यूमन डेवलपमेंट. 0.5 to 0.79 में मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड 0.8 to 0.9 हाई ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा 0.9 to 1.0. ये जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं उस वाइज हम ये डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग है इसको देखते हैं कि मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन द नॉर्वे. 2020 की है पिछले कई सालों से यूजुअली नॉर्वे ही पहले नंबर पे होता है एंड देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूजुअली नियर 1. Here it is 0.95. Then Ireland, Switzerland, Hong Kong and अदर डेवलप कंट्रीज है. डेनमार्क है. फर्स्ट 10 कंट्रीज में यही यूरोपियन कंट्रीज है. उसके बाद यूके के अलावा 17 नंबर पे यूएसए है 0.929 और हर वो कंट्री जिसमें कि 9 से अबव है इसराइल जापान उन सबके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is very good and there are a very good quality of life for the people. Now we consider that where is the Pakistan and you see it is 0.557 and this is the range which we see saw there is medium development. And here we see Afghanistan 0.51 and 0. Up taking Afghanistan for the many years there is war in that country, but Pakistan is not much ahead than the Afghanistan. And then at the end we saw here is Niger, Mali. These African countries are 0.3 and the so on. Lowest value is 0
and the highest value is 0.957, which is of Norway, or possible highest value may be 1. Dimensions of Human Development Index. Long and healthy life. The long and healthy life dimension is measured by life expectancy at birth. The life expectancy at birth is a statistical measure that an average individual is expected to live based on the certain demographic factors such as the year of birth and current age. डिफरेंट कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट होती है जो एट द बर्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम इसको देखेंगे। तो ये इस पे बेस करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। हाईएस्ट 85 भी है डेवलप कंट्रीज के, इससे ज़्यादा भी है। और जिन कंट्रीज में अच्छे मतलब सेहत अच्छी नहीं है, सेहत की सहूलतें अच्छी नहीं है, इसके अलावा वार है, उन जगहों पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्दी लाइफ कम होती है। सेकेंड इसका है डायमेंशन एजुकेशन। इट इज़ द सेकेंड डायमेंशन in Human Development Index, and the indicators of the education are the expected year of schooling and the mean years of schooling. According to the United Nations, the average maximum year of schooling 18 years and the mean maximum years of the schooling is 15 years. And then is the standard of living is usually measured by the gross national income per capita. GNI indicates the total domestic and foreign output created by the resident of a country. पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो जीडीपी की थी, यहाँ हम जो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जीएनआई की है। जीडीपी में आप सिर्फ वो इनकम प्रोडक्शन काउंट करते हैं विच इज प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, बट यहाँ पे आपकी कंट्री की कोई रिसोर्सेज जो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टेड हैं उनकी इनकम भी आप कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसी भी कंट्री के लिए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पहले 3 इंडेक्स अलग से कैलकुलेट करते हैं, मीन इनकम इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एंड एजुकेशन इंडेक्स। और फिर हम उन तीनों को 1/3 का वेटेज मतलब का वेटेज दे के उनको से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इनकम इंडेक्स। Adjusted income is found simply taking the log of current income. Then to find the income index, we subtract 100 from the log of current income on the assumption that the real per capita income cannot possibly less than 100. ये एक assumption है कि लो लिमिट कितनी होगी इनकम की, वो हम assume कर लेते हैं कि $100 से कम नहीं है based on purchasing power parity. The difference gives the amount by which the country has exceeded the lower goalpost. यहाँ पे ये बांग्लादेश की इनकम दी हुई है। It is for 2007 for example it was $1241 और इसका लॉग आप लेके इसकी जो लोअर लिमिट है उसको आप $100 का लॉग लेके उससे माइनस करें। इसको आपने to put the achievement in the perspective consider it in relation to the maximum achievement. मैक्सिमम अचीवमेंट हमने यहाँ पे assume की 2007 ये पुराने फिगर्स हैं, यहाँ पे इसको $40,000 लिया और उसका लॉग लिया हुआ है। लेकिन अब बहुत से कंट्री डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो इस हाईएस्ट लिमिट को क्रॉस कर चुके हुए हैं। एनीवे हम अपनी एग्जांपल में यहाँ पे 40,000 का लॉग लेके मीन आपको कुछ नई रिपोर्ट्स मिलेंगी जिनमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होगी तो आप उसे भी कंसिडर करेंगे। माइनस लॉग ऑफ 100 जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू हमने अज्यूम की हुई है। तो हमारे पास जो बांग्लादेश के लिए आंसर है इज इक्वल टू 0.420। और इसमें जो हमने जीडीपी पर कैपिटल ली है ये है 2007 की एंड इट इज बेस्ड ऑन पी मीन होता है परचेजिंग पावर पैरिटी कि आप में उसमें जो आपकी करेंसी की वैल्यू से डिफरेंट है उसके लिए उसको सेटल किया हुआ है और ये बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी करेंसी जो होती है आपने इसको कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अब कैलकुलेट करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जिसे हेल्थ के लिए प्रॉक्सी के तौर पे भी आप यूज करते हैं। इट starts with the country's current life expectancy at birth and subtract 25 years. The later is the lower goalpost, minimum एक country में जो average life हो सकती है उसे consider करते हैं 25 years है। It is the lowest that life expectancy could have been in any country over the previous generation. कि इससे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो किसी न किसी टाइम पीरियड में आप पीछे कहीं किसी एरिया में मतलब गुजर चुकी हो उसको मिनिमम हमने दिया। एक टाइम पीरियड था जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी
किसी टाइम एट टाइम ऑफ बर्थ सिर्फ 25 साल होती थी। नाउ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम डिवाइड्स द रिजल्ट बाय 85 ईयर। 85 को मैक्सिमम ले देते हैं, और अगर आप 60 लेना चाहें कि मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है, विच रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एक्सपेक्टेड ओवर द प्रीवियस एंड नेक्स्ट जनरेशन, कि मैक्सिमम 60 से 80 के दरमियान आप उसकी रेंज लेंगे। एंड इट इज एंटिसिपेटेड 85 ईयर इज अ मैक्सिमम रिजनेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर ए कंट्री। मतलब किसी कंट्री ने अगर गोल रखना हो कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे शुड अचीव, तो उसको 85 ईयर्स का गोल रखना चाहिए। अब हम अगेन बांग्लादेश की कंसिडर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, कि जिस ईयर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे 65.7 है। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज 65.7, उसको 25 से माइनस कर दें, और 85 जो सी है मैक्सिमम माइनस 25 मिनिमम इज इक्वल टू 0.678। देन एजुकेशन इंडेक्स है। द एजुकेशन इंडेक्स हैज टू पार्ट्स, एक उसमें अडल्ट लिटरेसी इंडेक्स है और दूसरा ग्रास एनरोलमेंट इंडेक्स है। इसमें जो आपकी ग्रास एनरोलमेंट है उसको आप 100 ले लें मैक्सिमम, और मिनिमम उसकी वैल्यू जो सी है वो आप 0 ले लें। अडल्ट लिटरेसी इज फॉर एग्जाम्पल 53.5% माइनस 0 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम जो आपने वैल्यू कंसिडर की है उससे सिर्फ 0 को माइनस करें तो 0.535 है। ग्रास एनरोलमेंट में भी आपकी जो स्कूल में बच्चे की एनरोलमेंट है, अगर वो 52% है, मिनिमम वो 0 हो सकती है, उसमें से 0 माइनस करें, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, 0.521। अब ये जो दो वैल्यू आपके पास आ गई हैं द एजुकेशन इंडेक्स की, इसमें से जो अडल्ट लिटरेसी है उसका वेटेज आप 2.3 रखेंगे, और जो ग्रास एनरोलमेंट इंडेक्स है उसका वेटेज आप 1.3 रखेंगे। इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 1.3 से, और फिर जो वैल्यूज आएंगी उन्हें ऐड करने से हमारे पास एजुकेशन इंडेक्स आ गया 0.530। ये सब एक्सपेक्टेंसीज इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमारे पास आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें हमने प्रीवियस जो इंडेक्स कैलकुलेट किए हैं, अब ये देखेंगे उन सबको हम 1/3 1/3 और 1/3 से इक्वल वेटेज हम उसे देंगे, विच इज़ 1/3। इनको हम 1/3 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगे और उसके बाद इन सबको टोटल करेंगे, तो बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर दिस डाटा इज 0.543। Human Development Index points up that disparities in income are greater than disparities in other index of development, कि अगर आप सिर्फ जीडीपी को कंसिडर करेंगे तो इस रैंकिंग में ये कंट्री बिल्कुल डिफरेंट जगह पे होगा, लेकिन हेल्थ एंड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन कंसिडर करें तो उसकी इतना लो रैंकिंग नहीं है जितनी कि इन केस ऑफ सिर्फ जीडीपी कंसिडर करने से था। Moreover, the Human Development Index reminds us that by development we clearly mean broad human development, not just higher income. Many countries, such as some of the higher income oil producers, have been said to be experience growth without development. इसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो से उनकी मिसाल आपके सामने है, तो उनकी जीडीपी अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत हाई है, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड आप कंसिडर करें सारी पॉपुलेशन का, तो उसके लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे यूज हुई है, इट इज़ ग्रोथ विदाउट development. Health and education are inputs into the national production function in their role as components of human capital. Human capital मीन होता है कोई भी स्किल जो ह्यूमन में एम्बॉडीड होती है, जिससे ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो एजुकेशन जो होता है वो एक तरह का ह्यूमन कैपिटल है, मीनिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एम्बॉडीड इन पर्सन इम्प्रूवमेंट। Now if we consider here one more thing, that improvement in the health and education are also important development goals in their own right, कि आप इसे ह्यूमन कैपिटल के तौर पे ना भी कंसिडर करें तो हेल्थ एंड एजुकेशन should be an important development goals for any country and economy. Pakistan Human Development Index value is 2019 की दी है 0.557, which put the country in the medium human development category, positioning it at 154 out of 189 countries. Between 1990 and 2019, Pakistan Human Development Index value increased from 0.4 to 0.5, and it is increase of 38.6%.
ये डिफरेंट लिंक्स है। इसमें यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है पाकिस्तान की लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं जिनमें डिफरेंट कंट्रीज जो से उनको कंपेयर किया गया। इनमें से अभी मैंने एक आपको दिखाई भी थी। Despite the revolutionary idea behind the concept of Human Development Index, the statistical measure is greatly simplified. The current version of Human Development Index calculations consider only a few factors that affect a country's development. However, other factors such as, for example, employment opportunities, empowerment, movements, and feeling of security can be added to the index calculation to come up with a more accurate analysis. तो उसमें सिर्फ हमने 3 dimensions ली हैं: एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो उसमें डिफरेंट और भी बहुत सी ऐसी डायमेंशन हैं जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन इस इंडिकेटर में नहीं आती। मसलन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसके अलावा एम्पावर मूवमेंट्स एंड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें बहुत से कंट्रीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे वार्स हैं, और इसके अलावा भी जहाँ पे टेररिज्म है। तो अगर आपको फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती, जिससे आपकी लाइफ क्वालिटी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होती है। ये हमने डिफरेंट कंट्रीज जो से हैं उनका रैंकिंग देखी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाइज ओवर द ईयर। इसमें हम कुछ और कंट्रीज भी देखते हैं जो पर कैपिटा इनकम वाइज तो काफ़ी डेवलप्ड हैं। सऊदी अरेबिया 0.854, ये भी डेवलप्ड ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स में आता है। हेयर इज़ कतर 0.848। इन कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है, दो देर इज़ problem of income distribution, there is inequality in income distribution. Now it is the Human Development Report of 2020, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द डिफरेंट 2020 के और दिया, और इसमें इसको डिस्कस किया गया स्पेशली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। इसमें आप ये देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड GNI पर कैपिटा। और ये जो लाइट ग्रीन कलर की लाइन है ये आपकी ये डिफरेंट इंडेक्स जो उनसे अलग अलग हैं। उसके बाद जैसा कि हमने फार्मूला में देखा कि हम उन सबको 1/3 की वेटेज दे के उन से दे के उसको टोटल करते हैं, तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 1990 टू 2019। ये इसमें थोड़ा ये आप इसको टेबल में देखना चाहें तो यहाँ पे टेबल में भी 1990 टू 2019 आपका इंडेक्स दिया हुआ है 0.4, तो इसकी वैल्यू अब नाउ 0.557 है। इसके अलावा फॉर द कंपैरिजन पर्पस हम ये देखते हैं कि ये बांग्लादेश का लाइट ब्लू, नेपाल के लिए ये लाइन है डैश लाइन, एंड इट इज़ द रेड इज़ पाकिस्तान 1990 टू 2019। ये कंपैरिजन है पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990 इन कंट्री से हायर था, देन इट इज़ डिक्रीज्ड इन 2005 एंड आफ्टर दैट 2010 टू 2019 बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गोइंग हायर देन पाकिस्तान। ये आप डिफरेंट कंट्रीज का, क्योंकि आप सिर्फ ये 1990 टू 2019 का पाकिस्तान का कंपेयर करेंगे तो ज़ाहिर है कि ओवर द टाइम इट इज़ इंक्रीज्ड। लेकिन अगर आप ये देखेंगे इस दौरान हमारे ही लेवल दूसरी कंट्रीज जिनकी हमारे जितने ही जैसे ही हालात या एनवायरनमेंट थे दे हैव गॉन अबव देन अस। एंड इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिस्कस भी किया गया।